Good morning, dear students. Today I am going to explain the poem from your book Rain on the Roof. Rain on the Roof is written by Coates Kinney. The poet's name is Coates Kinney. Coates Kinney is a great journalist, politician, as well as a poet. He wrote this poem in hostel when he sat there and it started rain and he enjoyed the rain in the memory of his mother. He wrote this poem. The title of the poem, The Rain of the Roof, suggests that the poem is about the rain. The title suggests us that the poem is about the rain. Rain on the roof. So its poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain as the sounds of the raindrops falling on the roof of his house and brings back the sweet memories of the past. मीन इस पोइम में क्या है कि वो अपनी मेमोरीज को बैकअप कर रहा है कि जो रेन में मीन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैसे उसको फील होता था और कैसे वो एंजॉय करता है रेन को, वो सब कुछ इस पोइम में है. रेन ऑन द रूफ. The poem is started with when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Means when the humid means full of moisture. Humid means full of moisture. And shadows, humid shadows means the black. Humid shadows is a phrase that describes the black clouds filled with moisture. Humid shadows means black clouds that are full of humid, full of moisture. Hover means remain in place in the air. When the humid shadows remain in the air all over the starry spheres. Starry means full of stars. Starry means full of stars. Spheres means area. Starry spheres area which is full of the stars. And melancholy darkness. Melancholy means sadness. Darkness means dark. Darkness depicts the melancholy. This is the personification, means darkness. We cannot see the darkness, but melancholy, sadness is the adjective of the darkness. ठीक है? This is personification in the poem. Gently weeps in the rainy tears. Means ऐसे लग रहा है क्या है कि जैसे हम ह्यूमन क्लाउड्स को, ह्यूमिड शेडोज को देखते हैं, मीन्स फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स को देखते हैं, तो क्या लगता है कि सब स्टारी नाइट्स में कवर कर लेते हैं, पूरी नाइट में जो स्टार्स को कवर कर लेते हैं जब वो क्लाउड्स होते हैं, तो जो ऐसा लगता है कि जो डार्कनेस है वो सिंबोलिज्म है सैडनेस का. ठीक है, डार्कनेस जहाँ पे कि सैडनेस जैसे हमें फील होती है. एंड जेंटली वीप्स, ऐसा लग रहा है कि वो क्राई कर रही है, रो रही है. इन द रेनी टीयर, जब रेन गिर रही है तो ऐसा लगता है कि टीयर्स गिर रहे हैं नाइट से. And what a bliss to press the pillow. Bliss means happiness. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Means poet को अपने चैम्बर बेड पे जाके, अपने कॉटेज में जाके पिलो को प्रेस करके सोना बहुत अच्छा लगता है, हैप्पीनेस लगता है. एंड लाई लिसनिंग टू पैटर. पैटर होता है साउंड ऑफ रेन. पिटर पैटर साउंड होती है ना रेन की. तो लाई लिसनिंग टू द पैटर मीन्स उसको जो साउंड ऑफ रेन ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड. मीन्स पोइट को अपने बेड पे जाके अपने पिलो को प्रेस करके रेन की पिटर पैटर की साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो इंजॉय करता है इसको. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी थिंकल ऑन द सिंगल्स has an echoes in the heart and a thousand dreamy fancies into a busy being start and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle, tinkle means making a ringing sound. Tinkle means making a ring
Every tinkle on the shingles. Tinkle means making a ringing sound. Shingles means rectangular wooden tiles. जो हमारी रूफ के ऊपर wood means टाइल्स होती है ना, वो टाइल्स को बोलते हैं shingles. Tinkles means एक sound of something. एंड शिंगल्स मीन्स टाइल्स जो होती हैं रूफ के ऊपर जो डाली होती हैं टाइल्स, वो वाली टाइल्स, ठीक है। हैज एन इको इन द हार्ट। इको होता है रिपीटेड साउंड, इको होता है रिपीटेड साउंड। जैसे एवरी टिंकल, एवरी जो साउंड जब बार बार रेन ड्रॉप्स ऊपर से गिरती है, जो साउंड जो रिपीट होती है वो मेरे हार्ट को एक इको देती है, रिपीटेड इन माई हार्ट। And a thousand dreamy fancies. Dreamy fancies means mind is always teeming with imagination. Dreamy means एक ड्रीम में हम क्या देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं ना। ड्रीमी फैंसीज मीन्स हमारे अंदर जो थाउजेंड इमेजिनेशन हमारे अंदर जो आते हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। जो हमारी बिजी जो लाइफ है इनके बीच में एक बहुत ज्यादा इमेजिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन हमारे अंदर आते हैं। एंड थाउजेंड कलेक्शन रिकलेक्शन सॉरी, recollections means memories, recollections means memories। एंड हमारे अंदर बहुत सी मेमोरीज बैकअप होती हैं। weave their air threat into move होता है बच्चे, run from side to side। weave means जो बुनते हैं ना, हम कुछ बुनाते हैं जैसे स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर बहुत सी जो मेमोरीज है हमारे अंदर वो बनती रहती हैं, रिपीट होती रहती है, अगेन एंड अगेन हमारी मेमोरीज रिपीट होती हैं, हमारे इमेजिनेशन जो रिपीट होते हैं। एज आई लिसन टू पैटर, जैसे मैं रूफ के ऊपर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ मीन्स रूफ के ऊपर जब पैटर की साउंड मुझे सुनाई देती है, रेन ड्रॉप्स की साउंड मुझे सुनाई देती है, तो मेरे अंदर बहुत सा इमेजिनेशन रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन हमारे अंदर आते हैं। एज वेल एज हमारे अंदर जो मेरी मेमोरीज है वो रिपीट होती हैं, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ जैसे ऐसे रेन हमारे ऊपर गिर रही होती है, ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, किसकी मेमोरी उसको आती है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, उसकी मदर की मेमोरी उसको आती है, उसकी मदर की याद उसको आती है। शी इज नो लॉन्ग, शी हैज बीन पास्ड अवे। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे मेरी मदर बहुत टाइम पहले यहाँ से जा चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है। अगोन मीन्स इस दुनिया से चले जाना, बहुत देर पहले उसकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही। एंड टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, डार्लिंग मीन्स डियर, जैसे डार्लिंग ड्रीम, और जैसे वो उसकी मदर है, ठीक है, उसके ब्रदर सिस्टर उसके सिबलिंग्स जो भी हैं उनकी याद उसको आती है। अरे शी लेफ्ट देम टिल द dawn, अरे मीन्स बिफोर टाइम, इनसे पहले, जैसे उसको और उसके ब्रदर्स को उसके सिस्टर्स को सभी को सुला रही होती थी, उसकी मदर उनको बातें सुना रही थी सुबह तक उनको, डॉन मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग तक उनको जगाती नहीं थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन, लिस्ट बच्चे यहाँ पे लिसन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, लिस्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिसन। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स होल्ड बैक, जैसे मैं अपनी मदर को दोबारा से सुनने की कोशिश करता हूँ, अगेन रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मेरी मदर की याद आती है। विच इज प्लेस्ड अपॉन द शिंगलिंग वाई पैटर ऑफ द रेन, जैसी रेन की ड्रॉप्स की साउंड मुझे सुनाई देती है, मुझे अगेन एंड अगेन किसकी याद आती है, मुझे अपनी मदर की याद आती है। जब बहुत ज़्यादा रेन होती थी तो मेरी मदर मुझे सुला रही होती थी, मेरे ब्रदर्स को, मेरे सिबलिंग्स को वो सुला रही होती थी, तो बहुत देर वो हमें वो सोने के लिए छोड़ देती थी, वो हमें कभी जगाती नहीं थी, जैसे ही हम ड्रीम्स देख रहे होते थे। तो अब भी मुझे अपनी मदर की याद आ रही है, ठीक है। Next, poetic literary devices. In this poem, there are 4 literary devices. First is alliteration. Alliteration, sound of same repetition of the consonant. Alliteration means repetition of the consonant. In first sentence, the H.
देखो ह्यूमर्ड होवर, ह्यूमर्ड एंड होवर, नेक्स्ट स्टारी स्फीयर्स, नेक्स्ट कॉटेज चैम्बर, पीटर पैटर, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट दैट शोज अस द अलिट्रेशन, लाइक ह्यूमर्ड साउंड ऑफ एच, होवर साउंड ऑफ एच, स्टारी साउंड ऑफ एस, स्फीयर साउंड ऑफ एस, ठीक है। तो दिस इज द प्रेस साउंड ऑफ पी, पिलो, प्रेस पी, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ द साउंड्स दैट इज द alliteration. First is humid hover, starry spheres, press pillow. These are the alliterations. ठीक है. Next is personification. In first sentence, in first passage, in third sentence, there is melancholy darkness. Darkness तो non-living thing है. बट ये सैडनेस के साथ इसको बोला कि सैडनेस, इसके साथ मेलनकली, जो सैडनेस जो एडजेक्टिव इसका लगा हुआ डार्कनेस का, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज दी पर्सोनिफिकेशन, हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज एना, एनामेटापोलिया, एनामेटापोलिया होता है बच्चे जो साउंड होती है, इसमें पैटर्न साउंड हो रही है, रिपीट हो रही है पैटर्न जो साउंड है, ठीक है, रेन की जो साउंड की हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो राइमिंग स्कीम है, इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई, ऐसा होता है ना, ए बी फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस में जो लास्ट राइम सेम होता है, थर्ड फोर्थ में सेम होता है ना, सॉरी फर्स्ट थर्ड में होता है, सेकेंड फोर्थ में होता है, ठीक है, वो होता है ए बी सी डी। बट इसमें क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, दीज आर दी राइम, दिस इज दी राइमिंग स्कीम इन द पोएम। नेक्स्ट बच्चे इसमें जो है फ्रेज दिए गए हैं, फ्रेजेस के मीनिंग्स नोट कर लो। ह्यूमर्ड शैडोज, ह्यूमर्ड शैडो रिफर्स टू dark clouds that produce rain. Human shadow refers to dark clouds that produce rain. Starry spheres, the night sky abounding in stars. Starry spheres, second sentence में हमसे starry spheres, the night sky abounding the stars. What a bliss, in fifth sentence, what a bliss, happiness of the poet. What a bliss means happiness of the poet. So this is the poem about the memory of the poet, कि कैसे वो जब रेन होती है तो पोइट को अपनी मेमोरीज रिपीट होती है, कैसे वो सभी को याद कर रहा होता है, एट लास्ट वो अपनी मदर को याद करता है। इट इज द रेपिटेशन ऑफ द मेमोरीज ऑफ द रियल मेमोरी ऑफ द पोइट। I hope you must understand the poem. Thanks. Have a nice day.